Hello friends, I welcome you all to your own channel Uniform Forces. So today we are going to start our new series on India's defense forces, that is the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Friends, as you know that Indian defense forces are one of the best in the world, and the kind of lifestyle they provide to you is unparalleled, means that cannot be provided by any other organization, at least in our country. Okay, so today we will begin our video from the thing like how you can join Indian Army. Okay, so there are several ways, around 9 to 10 ways in which you can join the Indian Army as a commissioned officer. Okay, so if you are preparing for the CAPF, then you must apply for these entries. As I have told you that the lifestyle, the kind of adventure atmosphere they provide to you, no other organization can provide you. Okay, so if your age bracket is within 16 to 28, then do watch this video because there will be some entries in which you can apply. Okay, so let's begin our video for today. So first of all, we'll see what all entries are available to us if we want to join the Indian Army. Okay, and we'll see the entries from different parameters like what is the entry name, और नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम कब होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया इन इट, एंड वेदर मेल और फीमेल और बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, वेयर यू कैन अप्लाई, लाइक विच ऑल वेबसाइट्स आर देयर, एंड देन सिलेक्शन प्रोसीजर, और फिर ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने टाइम की होती है, वो सब चीजें देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एंट्रीज बेस्ड ऑन 10+2. like if you are in 12th class or you have just passed the 12th class, then there are certain entries, so I'll be calling them 10+2 base entries. Okay, so let's start. The first entry for 10+2 base is NDA entry, that is National Defense Academy. So this academy is situated in Khadakwasla, Pune, Maharashtra, and I would say that this is a golden entry because you know at a very tender age, at a very young age, you are taken into the organization and then you have a good time to turn yourself into a gentleman. Okay, so that is the NDA based entry. Now the notification releases in June and December, so there may be a little bit change in the in the schedule, like rather than releasing in June, it may release in July or May, but you have to see that it's around June and December. So 2 times a year the exam comes, the notification comes, and then exam is conducted after hardly 3 or 2 to 3 months. Okay, so if the notification is coming in June, then the exam may take place in September or October. So 2 times a year this NDA examination comes. And then if I talk about the educational qualification, so either you should be in 12th class or you have just passed the 12th class. Let me tell you one more thing, that in this entry, NDA entry, you have the chance of joining all the 3 forces. You can join Indian Air Force, Army or Navy, but you have to give your preference in the beginning itself. So for example, since we are talking about Army only, so for Army you don't need to have any special branch like science, PCM or that sort of thing is not required. So just आप 12th क्लास में हैं, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई परसेंटेज भी मैटर नहीं करता है, बस आपको ये होना चाहिए कि आप या तो 12th क्लास पास कर चुके हो या फिर 12th क्लास में हो. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एज की. तो एज ब्रैकेट जो है वो 16.5 से लेके 19.5 years तक है. So if your age is falling within this bracket, then definitely you can apply for this entry. However, ये entry सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है. But the good thing is that now the government is coming up with the idea that it's going to start it for female as well. So that is a good idea, but still it needs to be implemented. Next, where you can apply for this entry. Okay, so first of all, only male and those should be unmarried. Okay, now where you can apply it? So you can apply it on the UPSC website. Now UPSC website is upsc.gov.in. Okay, what is the selection procedure? So there will be a written examination which will have 2 parts. One is maths and second is general ability. So there will be a written examination in which there will be maths and general ability. Okay, so once you clear this written part, you will be called for SSB. Now SSB is a service selection board.
So that will be taking your interviews. That will be a 5-day procedure. And once you are recommended in that and comes into the merit, अगर आप merit में आ जाते हैं, then you will be joining your academy NDA. Okay, so after return there will be an SSB, and once you are recommended comes into the merit, then आपकी ट्रेनिंग होगी. अब ट्रेनिंग आपकी NDA खड़गवासला में होगी. तो NDA कैसे होगी, कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी? 3 years की ट्रेनिंग होगी आपकी NDA में, ठीक है. और उसके बाद 1 year की जो ट्रेनिंग होगी, सिंस यू हैव ऑप्टेड फॉर इंडियन आर्मी, सो 1 year की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी होगी IMA में. IMA स्टैंड्स फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी. इट इज सिचुएटेड इन देहरादून. ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस एंट्री. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. So now let's move to the next 10+2 base entry, that is the technical entry scheme. Now it is a technical, since the name itself calls that it is a technical based entry. Okay, so only those students who are having a technical background, that is they have physics, chemistry, maths in their 12th class, only they can apply for it. Okay, so this is the technical entry scheme. In short, it is called as TES. Okay, so notification again, it comes 2 times in a year. One is in May or maybe June, and second is October or maybe November. Okay, so what is education qualification? As I told you, you need to have PCM. You need to pass the 12th class with more than 70% marks. Aggregate marks in PCM in just these 3 subjects. Okay, so what is the age criteria? Again, it is same as that of NDA, 16.5 to 19.5 year. Now male and female, so only unmarried male only. So here only unmarried male can apply, females cannot apply. Now where to apply? You can apply it on join Indian Army.nic.in. So this is the official website of Indian Army, the recruiting website, joinindianarmy.nic.in. So here you need to apply. Now what is the selection procedure? So suppose you have cleared your 12th class, only then you can apply for this entry. और उसके बाद आपके मार्क्स जो हैं वो देखे जाएंगे, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एक कट ऑफ तैयार होगी, ठीक है. अब उस कट ऑफ के हिसाब से मान लीजिए कुछ 100 बच्चों को बुलाना है, मान लो इंडियन आर्मी को, या फिर कुछ 1000 बच्चों को बुलाना है, तो वो कट ऑफ प्रिपेयर करेगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कट ऑफ यू आर डायरेक्टली कॉल फॉर द SSB. सो इन दिस देयर इज नो रिटन पार्ट. दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, कि आपको NDA की तरह यहाँ पे एक रिटन एग्जाम नहीं देना है, बल्कि डायरेक्टली आपके मार्क्स के ऊपर आपको जो है कॉल किया जाएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कट ऑफ जो होती है वो जनरली 80+ जाती है. तो आप मेक श्योर करें कि आपके 12th क्लास में जो है अच्छे मार्क्स आए. आफ्टर दिस सिलेक्शन प्रोसीजर इज सेम. दिस डायरेक्टली कॉल्ड फॉर SSB on basis of cut off. So the cut off is prepared and then you are called. इसके बाद ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? तो इसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो एक्चुअल में 5 साल की ट्रेनिंग होती है. उस 5 साल के अंदर आपका जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है वो OTA में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. इसके बाद आपकी जो बाकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है वो आपकी डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में होगी. मतलब आर्मी के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पर आपकी 4 साल की और ट्रेनिंग होगी. तो टोटल आपकी 5 years की ट्रेनिंग इसके अंदर होगी. तो दिस इज द सेकंड एंट्री, सेकंड 10+2 बेस एंट्री. ओके, सो दीज आर द 2 entries in which you can apply if you want yourself to be commissioned as a commissioned officer. So now we will see कि ग्रेजुएशन बेस एंट्री कौन कौन सी है. अभी तक हमने 10+2 बेस देखा, अब ग्रेजुएशन बेस एंट्री देखेंगे. सबसे फेमस एंट्री जो है वो CDS है. CDS means Combined Defense Services. This exam is conducted for both male and female and for all the tri services, Air Force, Army and Navy. Okay, but since we are talking about Army, so हम Army के बारे में यहाँ पे देखेंगे. इसका नोटिफिकेशन भी अगेन 2 बार निकलता है. कब निकलता है बता देता हूँ आपको. जुलाई में एंड नवंबर में, ठीक है. फिर इसके 2 से 2.5-3 महीने बाद द एग्जाम विल बी कंडक्टेड. नाउ व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सो either you are in final year
और यू आर ग्रेजुएटेड, ये होना चाहिए। और ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एज की बात की जाए तो एज जो है, अब देखिए सीडीएस के अंदर भी आप आर्मी को दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा है आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन कर सकते हैं, ओटीए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आईएमए की, तो आईएमए के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90 to 24 ईयर्स, यानी आप 19 से 24 साल के बीच होने चाहिए। और अगर बात करूं ओटीए के लिए तो आपकी उम्र होनी चाहिए 19 से 25 साल, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर अच्छी बात है कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, इसके लिए दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर अप्लाई करना है आपको? अगेन दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय UPSC.gov.in, यहां पर अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? दिस रिटन पार्ट इज कंडक्टेड, सो वंस यू क्लियर दैट रिटन पार्ट, अब रिटन जो एग्जाम होता है आपका, इसमें भी 3 टेस्ट होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक मैथ्स का होता है, और एक जनरल एबिलिटी का होता है, ठीक है। ये आपसे करवाया जाएगा। जिन लोगों को जो लोग सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओटीए जाना चाहते हैं, तो उनको जो है मैथ्स वाला एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जब रिटर्न आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन यू आर अगेन कॉल्ड फॉर द एसएसबी। नाउ एसएसबी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लाइक अगर आप कोई भी एंट्री में जा रहे हैं, इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी कमीशन्ड एज एन कमीशन्ड ऑफिसर, तो ऑफिसर एंट्री के लिए आपको एसएसबी जो है वो मैंडेटरी आपको क्लियर करना ही होगा। तो इसके बाद आपका जो होगा वो होगा एसएसबी के लिए आपको कॉल आएगी फिर, इफ यू क्लियर द रिटन पार्ट। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो होगी, जैसे मैंने बताया, अगर आप या तो आईएमए में जाएंगे, या तो आपकी ट्रेनिंग आईएमए में होगी, या फिर आपकी ट्रेनिंग जो है ओटीए चेन्नई में होगी, और ये करीब 1 साल की जो है ये ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग रहती है ये यहाँ पर। तो सीडीएस एंट्री आपको क्लियर है? अगर कुछ भी दिक्कत है तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज यूईएस entry. This is a technical entry. UES means University Entry Scheme. Okay, so notification comes once in a year, that is either in June or July. Education qualification is that you must be in pre-final year. Okay, so all those people who are doing their engineering and they are in 3rd year of their engineering, so they can apply for it, ठीक है। इसके बाद एज की बात की जाए तो 19 से 24 साल इसका एज ब्रैकेट है। इसके लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और कहां पर अप्लाई करना है आपको? आपको अप्लाई करना है ज्वाइन इंडियन army.nic.in, यहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन कैसे होता है? तो The army officers will come into your college and they will take interview. अब वो इंटरव्यू जो है वो ग्रुप डिस्कशन के रूप में भी हो सकता है, वो पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, देन यू आर कॉल्ड फॉर दी एसएसबी, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले जो आपका होगा इंटरव्यू वो कॉलेज में होगा, और उसके बाद फिर आपको एसएसबी के लिए कॉल आएगा। इसका मतलब है कि आपको कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं देना होगा। और अगर आप एसएसबी में क्लियर हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं और मेरिट में आ जाते हैं, तो उसके बाद आप आईएमए जाएंगे। आईएमए में आपकी ट्रेनिंग जो है 1 साल के लिए ट्रेनिंग आपकी होगी, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू इन दिस एंट्री। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एंट्री, एंड नेक्स्ट एंट्री इज एनसीसी एंट्री। सो एनसीसी, एज यू ऑल नो, दिस इज नेशनल कैडेट कोर। तो जो भी लोग एनसीसी का पार्ट रह चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहां पर आपको कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है, यू विल बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर दी एसएसबी, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जो होता है वो जून और दिसंबर में आता है, ठीक है। तो जून और दिसंबर यानी कि 2 बार आएगा साल में, और मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग बार नोटिफिकेशन आएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एनसीसी जो है वो आर्मी विंग के अंदर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 2 साल आप पार्ट रहे होने चाहिए एनसीसी के। और इसके अलावा आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सी सर्टिफिकेट, जिसके अंदर कम से कम आपका बी ग्रेड जो है
वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एज की बात करें तो एज जो है इसकी 19 से 25 ईयर्स है। मेल फीमेल अनदर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। कहां पर अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट कॉल इसके लिए आपको आएगा, आप डायरेक्टली कॉल फॉर एसएसबी के लिए आपको सीधा कॉल आएगा, आपको एसएसबी जाना है। और अगर आप एसएसबी क्लियर कर देते हैं, मतलब रिकमेंड हो जाते हैं एंड फाइनली मेक्स इनटू द मेरिट, तो उसके बाद आपको फिर ट्रेनिंग होती है आपकी। और ट्रेनिंग कहाँ होती है, ओटीए चेन्नई में 49 वीक्स की आपकी ये ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो अगर जो भी कैंडिडेट्स एनसीसी का पार्ट है वो जरूर ध्यान दें इसमें कि ये एंट्री एक बहुत ही अच्छी एंट्री, गोल्डन एंट्री बोली जा सकती है एनसीसी कैडेट्स के लिए। और इस एंट्री में आपको कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं होगी। ओके, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है वो टीजीसी एंट्री है, विच इज अगेन अ टेक्निकल एंट्री। टीजीसी स्टैंड्स फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो या तो मार्च या अप्रैल में आ सकता है, या फिर मतलब दूसरी बार आएगा तो सितंबर या अक्टूबर में आएगा। तो 2 बार आता है साल में। ठीक है, मार्च या अप्रैल या फिर सितंबर या अक्टूबर में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 4th ईयर में होने चाहिए, अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं बीए बीकॉम तो आप 3rd ईयर में होने चाहिए, या फिर आपने कंप्लीट कर लिया हो यानी आप पास हो चुके हैं। ठीक है, अपना ग्रेजुएशन आपने कर लिया तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। एज देखा जाए तो एज ब्रैकेट 20 से 27 ईयर है, तो इसमें अच्छा खासा एज ब्रैकेट है, 27 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कहाँ पर करना है, तो अगेन आपको ये अप्लाई करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, जो कि है joinindianarmy.nic.in। यहाँ पर अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके 6 सेमेस्टर्स तक के मार्क्स देखे जाते हैं, परसेंटेज देखा जाता है, और उस बेसिस पर एक कट ऑफ तैयार होता है। और अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो फिर आपको एसएसबी के लिए डायरेक्ट कॉल आएगा, आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि कट ऑफ के बेसिस पर होता है, उसके बाद आपको कॉल कर लिया जाता है एसएसबी के लिए। ठीक है, तो आपके जो भी 6 सेमेस्टर तक के परसेंटेज बनते हैं उसके बेसिस पर ये होता है। ट्रेनिंग जो होगी इसकी, आपकी ट्रेनिंग आईएमए में होगी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी आईएमए में। Okay, so now let's move on to next entry. This is SSC entry. So this is a technical entry. SSC stands for Short Service Commission. So you can become part of army through 2 means. One is Short Service Commission and second is Permanent Commission. So Short Service Commission, in this you will serve the Indian Army for 10 to 14 years. Okay, whereas in the Permanent Commission you will serve till your retirement age. तो यही फर्क होता है दोनों के अंदर। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से जाते हैं तो आप एक्सटेंशन बाद में ले सकते हैं, मतलब 14 साल सर्विस पूरी होने के बाद आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे परमानेंटली यहाँ पे सर्व करना है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन या तो जून या जुलाई में आएगा पहला नोटिफिकेशन, और दूसरा नोटिफिकेशन आता है दिसंबर या फिर जनवरी में। तो मतलब साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फाइनल ईयर या फिर पास आप होने चाहिए किसमें, इंजीनियरिंग में मतलब आपके पास बीटेक होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, यू कैन बी अ सिविल इंजीनियर, यू कैन बी अ मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एज की बात की जाए तो 20 से 27, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपकी एज अगर 26 से ज्यादा भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल की बात करें तो दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगेन अ गुड थिंग। और आपको अप्लाई कहाँ करना है, आपको अप्लाई करना है ज्वाइन इंडियन army.nic.in पर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो अगेन आपका जो भी परसेंटेज आपने स्कोर किया है उसके ऊपर एक कट ऑफ डिसाइड होता है, और कट ऑफ के बेसिस पर आपको कॉल आता है डायरेक्टली। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, तो यानी कि कॉल फॉर एसएसबी, डायरेक्ट आपको एसएसबी के लिए कॉल आएगा। एसएसबी अगर आप इफ यू मेक इनटू द एसएसबी, यू आर रिकमेंडेड, यू कम्स इनटू द मेरिट, यू विल बी जॉइनिंग ओटीए वेयर यू विल बी ट्रेन्ड फॉर 49 वीक्स। ठीक है, तो ये एंट्री थी एसएससी टेक्निकल एंट्री फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज जैग एंट्री।
जज, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये जैग एंट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना लॉ कर चुके हैं ये इसके लिए, इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी और जुलाई 2 बार आता है। ठीक है, और ये एंट्री जो है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आप 10 से 14 साल सर्व करेंगे इंडियन आर्मी को। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास लॉ आपको पास होना चाहिए जिसमें आपके 55% से अबव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास BCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें एज की बात करें तो 21 से 27 ईयर्स एज ब्रैकेट के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात करें मेल फीमेल की तो दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अप्लाई कहां पर करना है? ज्वाइन इंडियन army.nic.in पर जाकर आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे बताया, ये इसके बेसिस पर आपको कॉल आएगा, डायरेक्ट कॉल आएगा SSB के लिए, डायरेक्ट कॉल आएगा। और इसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो है OTA में होगी 49 वीक्स के लिए। ठीक है, तो ये एंट्री पे आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज AEC एंट्री, means Army Education Corps. So if you want to be a teacher in the Indian Army, then you can become a teacher through this entry. So this is AEC entry और इसका नोटिफिकेशन जो है 2 बार निकलता है, एक मार्च में और दूसरा सितंबर में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यू मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद चाहे मतलब फर्स्ट डिवीजन से हो या सेकंड डिवीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप PG जो है आपके पास होना चाहिए, मास्टर्स यानी आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो 23 ईयर से लेके 27 ईयर्स एज ब्रैकेट वाले कैंडिडेट्स जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि फ्यूचर में जो है फीमेल भी इसके लिए एलिजिबल हो जाए। कहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप? ज्वाइन इंडियन army.nic.in। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा कि आपका वही कट ऑफ देखा जाएगा और उसके बेसिस पर आपको डायरेक्टली कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कॉल आएगा SSB के लिए। अगर आप SSB क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, कहां पर होगी? IMA में फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये थी नेक्स्ट एंट्री। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल 9 एंट्रीज। यस, वी हैव डिस्कस्ड 9 एंट्रीज, 2 एंट्रीज 10+2 बेस्ड and rest 7 graduation based entries. So initial 10+2 वर NDA and TES एंट्री। ठीक है, तो अगर आप इन एंट्रीज के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज अप्लाई कीजिए, इनके बारे में और सर्च कीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, आपकी एज उस ब्रैकेट के अंदर लाई करती है, तो प्लीज इनके लिए अप्लाई कीजिए। दीज आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डिफेंस फोर्सेज जो हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और अप्लाई कीजिए इनके लिए, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड यू अनपैरेलल अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर। ठीक है, तो आज के लिए यही वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर इट सो दैट इट कैन रीच टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल who wants to be part of Indian Army or the defense forces. Thank you. See you in the next video.